Today we are going to start rules to change active voice into passive voice. We have already discussed about voice, active voice and passive voice. I have told you that what is voice. Voice is a way of, is a style of expression, or we can say a verb that shows subject does an action or an action is done to the subject. Okay, active voice, it is also clear. Yesterday we have discussed about that. Active voice, a verb that shows subject does an action. For example, I play music, I use mobile. In this kind of sentences or in this structure or in active voice, we will see subject is active. Subject is active. On other hand, in passive voice, we will see subject is in passive form. Subject is in passive form. For example, music is played by me. Music is played by me. Water is drunk by me. Here we will say, here we will see subject is in passive form and object is used instead of subject, and it will be called subject of the sentence, because we have learnt that starting point of subject, starting point of sentence is called subject. Okay, here today we are going to start rules to change active voice into passive voice, means how we can convert active voice into passive voice. So let's see. First of all, the first rule is to change active voice into passive voice. Object of sentence or object of active voice is used instead of subject in passive voice. In passive voice, we can write here an object of active voice is used instead of subject in passive voice. Okay, पुट तव्हां ॾिसंदो त पैसिव वॉइस जो जेको सब्जेक्ट हूंदो उहो तव्हांखे एक्टिव वॉइस जो ऑब्जेक्ट नज़र ईंदो. मीन्स एक्टिव वॉइस जो जेको ऑब्जेक्ट आहे वो पैसिव वॉइस में एज सब्जेक्ट तौर इस्तेमाल थींदो. जो पैसिव में सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा. जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले म्यूजिक. आई प्ले म्यूजिक. The first rule is an object of active voice is used in passive voice instead of subject. हिते खणी ईंदस. ओके, पहिरियों रूल क्लियर थी वियो. त पहिरियों क़ाइदो इहो आहे त एक्टिव वॉइस जो जेको ऑब्जेक्ट आहे उहो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट तौर इस्तेमाल थींदो. सब्जेक्ट तौर इस्तेमाल थींदो. ओके, द सेकंड वन इज
according to tense, according to tense or structure, tense or structure. To be verb को सवाइ पेसिव थींदी नहीं, जेड़ी भी स्ट्रक्चर जी पेसिव कंदो उहा टू बी वर्ब्स में थींदी, छा में थींदी? टू बी वर्ब्स में. ओके, मिसाल तौर हे प्रेजेंट आ, प्रेजेंट जी असां पेसिव कंदा आहियूं इज ए आर्मी, छा में कंदा आहियूं? इज ए आर्मी. त हिते असां छा यूज़ कयो आहे? इज यूज़ कयो आहे, प्रेजेंट टू बी आहे, छा आहे? टू बी वर्ब आहे. जेकॾहिं असां कयूं था कंटिन्यूअस टेंस जी, त कंटिन्यूअस में असां इज एम आर साॻियो ई हूंदो आहे, बीइंग हणंदा आहियूं, बीइंग बि टू बी वर्ब आहे. जेकॾहिं असां कयूं था परफेक्ट टेंस जी, हैव और हैज जी हैव बीन में बीन भी टू बी वर्ब आहे. ओके, जेकॾहिं असां कयूं था पास्ट सिंपल जी वाज वर में, वाज वर भी टू बी वर्ब आहे. ओके, या ॿियूं स्ट्रक्चर्स जेके भी आहिनि उन जी कंहिंजी बी सां थींदी आहे, वो बी भी टू बी वर्ब आहे. ओके, so the second rule is to be verb is used according to tense or structure, means according to the changing of structure, changing of tense. Okay, उन खां पोइ third one, the third one is third form of verb means present past participle, past participle, or you can say third form of verb is used in whole passive, is used in whole passive. जेका भी तव्हां पेसिव कयो, जंहिं भी स्ट्रक्चर जी पेसिव कंदो, जिस भी स्ट्रक्चर की पेसिव करोगे, यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू हैव टू यूज पास्ट पार्टिसिपल. ओके, look here, here we see play. The third form of play is played. This is your third one. Okay, this is first one, this is second. Now fourth point is use of preposition bar, use of preposition bar. Preposition by is, preposition by is used after third form, after third form of verb. This is your fourth rule. Okay, चौथो क़ाइदो कहिड़ो आहे त preposition by इस्तेमाल कंदासे वर्ब जी टी सूरत खां पोइ, preposition by यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में. ओके, sometimes we use other prepositions like to, eat, with. ओके, कॾहिं कॾहिं ॿियूं prepositions भी इस्तेमाल थींदियूं आहिनि, to इस्तेमाल थींदी आहे, eat इस्तेमाल थींदी आहे, with इस्तेमाल थींदी आहे. फॉर एग्जाम्पल, house is covered with ice, house is covered with ice. You passive style है छाजो, ice covers the house, ice covers the house. The house is covered by ice, nothing, no, with ice. Okay, second one, 8, her death alarmed me, her death alarmed me, I am alarmed at her death, by her death. न अलार्म 8 खणंदो वारी थी, या पेसिव आहे, प्रेजेंट टेंस जो जुमलो आहे, ठीकु आहे न. त काथे 8, काथे वरी टू, काथे विद. टू जो मिसाल वठो, आई नो यू,
I know you यो एक्टिव स्टाइल है चाहे एक्टिव स्टाइल जॾहिं हिन जी पैसिव कंदासीं you are known to me not by me you are known to me by न to हणंदासीं छा हणंदासीं to so sometimes we use it some words take it to and with okay mostly we use by the fifth one and the last one point of this agent is used after preposition agent is used after preposition you can say subject of active voice is used as an agent in passive voice okay you can write here subject of active voice is used as an agent in passive voice look here this is subject of active voice ही active voice जो subject है इनके असां चए थो त active voice जो subject passive voice में agent तौर इस्तेमाल कंदासीं preposition by जे चौथो रूल ठीक है फिफ्थ रूल मुताबिक एक्टिव वॉइस जो को सब्जेक्ट आ वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस हणी करे असा एज एजेंट इस्तेमाल कंदासीं इहो पंजो रूल आहे ओके look the first one is subject जेको असां इस्तेमाल कयूं था पैसिव वॉइस में वो एक्टिव वॉइस जो ऑब्जेक्ट है चाहे ऑब्जेक्ट है तो असां छा चवंदासीं एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज यूज्ड एज सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस दिस इज योर फर्स्ट ओके सेकंड वन helping verb or to be verb is used according to the changing of tense जे मुताबिक टेंस जी चेंजिंग जे मुताबिक टेंस जी तब्दीली जे मुताबिक असां टू बी वर्ब इस्तेमाल कंदासीं ओके थर्ड रूल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन होल पैसिव सजी पैसिव वॉइस में वर्ब जी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल थींदी आहे ओके द फोर्थ रूल preposition by is used after third form some words take other prepositions like it to and with okay the fifth one is an object of subject of active voice is used as object in passive voice okay you can also see subject of active voice is used as an agent in passive voice okay हिन के असां ऑब्जेक्टिव केस त चवंदासीं पर हिते इहो ऑब्जेक्ट न आहे इन जे करे असां हिन खे चवंदा आहियूं एजेंट आहे छा आहे एजेंट लिखी कमु कंदो आहे ख़ामोश थी कमु कंदो आहे ओके इन जे करे जेको एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट आहे इहो आख़िर में पैसिव वॉइस में एज एजेंट तौर इस्तेमाल थींदो इहे इन जा 5 रूल्स आहिनि मिसाल ॾिसो फॉर एग्जांपल वी ईट एपल्स ओके दिस इज सब्जेक्ट दिस इज प्रेजेंट फॉर्म दिस इज ऑब्जेक्ट ओके नाउ इट इज टाइम टू अप्लाई रूल्स Look, पहला कायदा एक्टिव वॉइस जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तौर यूज थींदो पैसिव वॉइस में अदा लिखियो सही एपल्स ओके नंबर 2 ॿियो कायदो
बी वर्ब जो इस्तेमाल टेंस जी चेंजिंग जे मुताबिक। हाणे हे आहे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस चेंज कंदा आहियूं असां पैसिव वॉइस में इज एम आर में। ठीक, हाणे ही सब्जेक्ट जमो आहे, हिते छा आणो आर, एपिल्स आर। उन खां पोइ थर्ड क़ाइदो जेको आहे उहो आहे वर्ब जी थर्ड फॉर्म। ईट जी थर्ड फॉर्म छा आहे? ईटिन। छा आहे बचा? ईटिन। चौथों क़ाइदो कहिड़ो आहे? असां प्रीपोजिशन आणंदा आहियूं। हिते कहिड़ी लॻंदी? बाय। एपिल्स आर ईटिन बाय। पंजो क़ाइदो कहिड़ो आहे? एक्टिव वॉइस जो जेको सब्जेक्ट आहे उहो पैसिव वॉइस में एजेंट तौर इस्तेमाल कंदा आहियूं बाय अस। ओके, दिस इज योर एक्टिव वॉइस एंड दिस इज योर पैसिव वॉइस। क्लियर? ओके।